Hello all, welcome to the Daily Answer Writing Initiative by IS Network. In the series of solving the questions from Indian society, today is day 3 and today again we have taken a question from paper 1 2020 GS. So we'll be looking at what was the theme of the question and how we can write a good and comprehensive answer. But before that, try to like the video, do comment whatever you feel like about the video and what more improvements can be taken and what more other aspects of UPSC can be taken in our daily answer writing initiative. So till then, let's start. So we talk about today's day 3 and again we have taken a portion from Indian society and the theme of today is regionalism. So a question which was question number 10 in GS paper 1 which came this year was from the theme of regionalism, and we will see how the question was being asked from contemporary point of view and how we can write a good answer for that. So if we look at the question was, it is asking, do you agree that regionalism in India appears to be an outcome or a consequence of rising cultural assertiveness? ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है? इट इज़ आस्किंग आवर ओपिनियन, इट इज़ आस्किंग आवर आर्ग्यूमेंट ऑन दिस क्वेश्चन दैट जो अभी का रीजनलिज्म है, ठीक है, द कंटेम्प्रेरी रीजनलिज्म हम जो देखते हैं सोसाइटी के अंदर, इट इज़ अ आउटकम और अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग, ठीक है, राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस, ठीक है, एंड इट इज़ गिविंग अ क्वेश्चन टैग ऑफ आर्ग्यू, ठीक है. तो क्वेश्चन टैग आर्ग्यू है. आर्ग्यू का मतलब क्या हो सकता है? येस, वी मे बी इन कॉन्सोनेंस विद द स्टेटमेंट दैट येस रीजनलिज्म क्या है, एक पार्ट है किसका, राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस का. देन ऑल्सो वी कैन गिव आर्ग्यूमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नो दैट वाई नॉट इट इज़ ओनली एन आस्पेक्ट ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस बिकॉज रीजनलिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जिसके क्या है कि बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे. अगेन लाइकवाइज द क्वेश्चन इज ऑफ 150 वर्ड्स, ठीक है, दैट इज रफली 2 पेजेस विल बी अवॉर्डेड फॉर राइटिंग दिस आंसर. एंड यूजुअली ideally the answer should be completed in 7.5 minutes for paper completion. ठीक है, तो क्वेश्चन टैग समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया. द क्वेश्चंस आर कमिंग मोर डायनामिक in nature because it is asking your views. So the questions are not like with conventional question tags like what, how, examine, discuss, comment. It is actually asking us to give arguments both in favor and in disfavor. ठीक है, अब likewise we can take the approach of introduction. इन द फर्स्ट एस्पेक्ट, इंट्रोडक्शन यूजुअली कैरीज आवर 5% ऑफ द आंसर. ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो दो तरीके के इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, व्हाट एंड वाई. ठीक है, व्हाट हमारा स्टैटिक टाइप का इंट्रोडक्शन है, एंड इफ़ यू टास्क अबाउट वाई इट इज़ अवर अप्लाइड और करंट अफेयर्स बेस्ड. ठीक है, दोनों लिख सकते हैं. तो इसमें अगर आप कोई करंट रिलेटेड एस्पेक्ट है जिसमें क्या है कि कल्चरल असर्टिवनेस की वजह से रीजनलिज्म मैनिफेस्ट हुआ हो, वो वाला एग्जांपल भी दे सकते हो. ठीक है, देवर मैनी इंसिडेंट्स इन द स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र जहाँ पर सन ऑफ सॉइल थ्योरी को क्या है कि बहुत ही ज़्यादा असर्ट किया गया है कल्चरल वे से, ना कि इकोनॉमिक वे से, तो हम उसको बता सकते हैं. ठीक है, बट आई एम टेकिंग अ स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग अ introduction here, so I will simply explain what is regionalism briefly in 2 or 3 lines, and I will be giving a brief highlight of what is regionalism in a positive connotation and what is regionalism in a negative connotation. तो अगर regionalism की बात करूँ तो regionalism nothing but an expression, it is an expression, regionalism is an expression, ठीक है, which gives us a sense of identity, it gives us a sense of identity and purpose by people within a specific geographic region. ठीक है, it gives a sense of identity and purpose by people within a specific geographic region. ठीक है, and these people in a specific geographic region are united by culture, language, ठीक है, ethnicity, history, etc.
ठीक है। तो कोई भी पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर लोग क्या है यूनाइटेड हैं ड्यू टू देयर कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है, व्हेन दे डेवलप अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड अ पर्पस इन दैट पर्टिकुलर रीजन, इट गिव्स एन एक्सप्रेशन ऑफ रीजनलिज्म। ठीक है। अब रीजनलिज्म के क्या है कि दो एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव कनोटेशन है इसका और एक नेगेटिव कनोटेशन है या एक नेगेटिव सेंस है। अगर पॉजिटिव सेंस की बात करूँ तो पॉजिटिव सेंस के अंदर क्या होता है, इट एनकरेजेस पीपल, ठीक है, पॉजिटिवली क्या होता है, एक एनकरेज करता है पीपल टू डेवलप व्हाट, टू डेवलप सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, भाईचारे को प्रमोट करता है, ब्रदरहुड, प्लस इट हेल्प्स अस इन व्हाट, इट हेल्प्स अस इन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। नेगेटिवली कैसे होता है कि सपोज अ रीजन एंड इट्स पीपल, पीपल लिविंग इन रीजन हैविंग एन एक्सेसिव, इफ दे हैव एन एक्सेसिव अटैचमेंट towards to the region, then what will happen is it will be negative or detrimental for the unity and integrity of the nation। ठीक है। तो नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के अंदर इट कैन बी अ नेगेटिव एस्पेक्ट। ठीक है। तो यूजुअली इंडिया में रीजनलिज्म के टॉपिक को नेगेटिव सेंस में प्रोपाउंड किया जाता है। अब इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2-3 लाइन्स लिखनी है। दैट रीजनलिज्म एज एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस बाय पीपल लिविंग विद इन स्पेसिफिक रीजन जोग्राफिकली विच आर यूनाइटेड बाय कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी। ठीक है। पॉजिटिवली इट एनकरेजेस पीपल टू हैव अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड नेगेटिवली इट कैन बी अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हम सिंपली ये बता सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हाट के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। स्टैटिक लिख दिया, परफेक्ट है। अप्लाइड लिखना है तो रिसेंटली देयर मेनी aspects of criticisms came in which countless attacks on people migrated from other states like Bihar, West Eastern UP, in the states like Maharashtra, गुजरात। तो हम बता सकते हैं वहाँ पर कैसे क्या है कि आउटसाइडर इनसाइडर कंसेप्ट आया है और इट इज़ अ आस्पेक्ट ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस। तो हम वो अप्लाइड वाले में लिख सकते हैं। तो बोथ काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है। 5% लिखने के बाद 5% के अंदर थोड़ा सा हमने बड़ा किया है, तो इसके मतलब ये 4-5 लाइन्स के अंदर introduction will be completed and this will be your 5% of the answer, which is a good start to your answer। अब सेकेंड बात करें बॉडी की, तो बॉडी के अंदर what we will be doing is we will be getting an argument in the for side। ठीक है, yes side कि yes how means how that regionalism is a part of rising cultural assertiveness। ठीक है, cultural assertiveness का मतलब क्या है कि अब स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल है, दे आर असर्टिंग, ठीक है, दे आर लेजिटिमाइजिंग, दे आर फोर्सिंग देयर कल्चर ऑन अदर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो फोर्सिंग या असर्टिंग देयर कल्चर ऑन अदर ग्रुप ऑफ पीपल इज कल्चरल असर्टिवनेस। ठीक है, ऑन अदर ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये होता है कल्चरल असर्टिवनेस। अब कल्चर के बहुत सारे क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर कल्चर के कंपोनेंट्स की बात करूँ तो लैंग्वेज इज़ वन कंपोनेंट, ठीक है, देन एथनिसिटी इज़ वन कंपोनेंट, देन कस्टम्स आर वन कंपोनेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कैसे रीजनलिज्म जो है, कंटेम्प्रेरी रीजनलिज्म इज़ अ कॉन्सिक्वेंस और अ पार्ट ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। अब इसका हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि वाइल पीपल ट्राइंग टू इंश्योर कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया सस्टेन। ठीक है, जब लोग व्हेन पीपल ट्राई टू सस्टेन, ठीक है, सस्टेन, ठीक है, देयर कल्चरल आस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया। ठीक है, जब वहाँ के लोग अपने कल्चरल आस्पेक्ट को सस्टेन करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, तब क्या होता है, दे ऑफन एंड अप, ठीक है, दे ऑफन एंड अप विद नैरो माइंडेडनेस, ठीक है, एंड दे बिकम व्हाट, दे बिकम लेस एक्सेप्टिंग ऑफ अदर कल्चर्स। ठीक है, एंड दिस फिनोमेना इज आवर कल्चर असर्टिवनेस। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है, तो ये रफली येस के अंदर हम क्या है 40% इसको हम वेटेज देंगे कि येस जो अब रीजनलिज्म देखा जा रहा है 21st सेंचुरी में इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइजिंग कल्चरल असर्टिवनेस। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें
तो हम बता सकते हैं कि जो पीपल विद जिनके डोमिनेंट दे हु परसीव देयर कल्चर्स एज डोमिनेंट कल्चर्स, ठीक है, जिनको अपने कल्चर्स क्या डोमिनेंट लगते हैं, जिनको अपने कल्चर्स क्या लगते हैं सुपीरियर लगते हैं देन अदर ग्रुप ऑफ पीपल इन अ रीजन, ठीक है, व्हाट दे डेवलप व्हाट वी कॉल एज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है उनके अंदर इन देयर माइंड्स, ठीक है, जहाँ पर वो लोग इनहेबिट करते हैं फ्रॉम मैनी ईयर्स, एंड व्हाट दे गेट एज अ रिजल्ट, दे गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप, ठीक है, ऑन रिसोर्सेज ऑफ दैट रीजन, ठीक है, दे गेट अ फॉल्स सेंस ऑफ ओनरशिप ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द रीजन। अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स लाइक आइडिया ऑफ आर्यनाइजेशन, ठीक है, आइडिया ऑफ आर्यनाइजेशन, ठीक है, एंड दिस इज स्पेशली ट्रू इन द हिंदी बेल्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, हिंदी बेल्ट कौन सी कंट्री की ये, दिस इज द हिंदी बेल्ट, हिंदी बेल्ट मीन्स हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है द आस्पेक्ट और द आइडिया ऑफ आर्यनाइजेशन द सुपीरियर रेस ऑफ आर्यंस, ठीक है, यहाँ पर है एग्जाम्पल अगर इसकी और बात करूँ तो मैं यहाँ पर अभी रिसेंटली देयर वाज अ मूवमेंट कॉल्ड पत्थलगड़ी मूवमेंट। अब पत्थलगड़ी मूवमेंट कहाँ पर था, ईस्टर्न इंडिया के अंदर। अब ईस्टर्न इंडिया के अंदर पत्थलगड़ी मूवमेंट ने क्या किया, व्हाट पत्थलगड़ी मूवमेंट डिड वाज, ठीक है, इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन गिविंग मोर एम्फेसिस ऑन कस्टमरी लॉज, ठीक है, फॉर गवर्नेंस एंड रिजेक्टिंग, ठीक है, एंड दे रिजेक्टेड व्हाट, दे रिजेक्टेड द सेंट्रल लॉज, ठीक है, सो दैट वाज पत्थलगड़ी मूवमेंट इन द ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, so these are the reflections of regionalism due to the more emphasis, superiority and dominance given to the cultural aspects, and in turn they are showing what cultural assertiveness। अगर लिंग्विस्टिकली बात करूँ, कल्चर में लिंग्विस्टिक्स भी आते हैं, अगर लिंग्विस्टिकली बात करूँ तो यहाँ पर क्या है मराठी, यहाँ पर क्या है हमारी कन्नड़, यहाँ पर क्या है मलयालम, यहाँ पर क्या है तमिल, यहाँ पर क्या है तेलुगु, ठीक है, तो द वेरियस स्टेट्स हैव बीन बाइफर्केटेड और the aspect of regionalism has been reflected finally in the form of formation of different states और newer states, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में क्या है लैंग्वेज बेसिस पे डिवीजन हुआ, फिर हमारे पास क्या कन्नड़ हो गया एग्जाम्पल, फिर रिसेंटली हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल हो गया आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना वॉज द रिसेंट एग्जाम्पल, ठीक है, विच वॉज इन द ईयर 2014। तो दीज आर द लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट्स on which of linguistic aspects of culture which are giving rise to the idea of regionalism, ठीक है, तो you can draw a map and you can show the distribution of the languages and based on that an aspect of regionalism can be shown। तो पार्ट 1 हमने डिस्कस कर लिया। अब जब पार्ट 2 की बात करूँ कि however I will not write part 2 in my answer, in my actual answer in the exam I will write however regionalism is also a consequence of other aspects, ठीक है, अभी अदर एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं, अब अदर एस्पेक्ट्स में देयर वेरियस थिंग्स लाइक राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, तो एट टाइम्स क्या होता है, एट टाइम्स रीजनलिज्म कैन बी यूज्ड फॉर गेनिंग पॉलिटिकल लेवरेज, ठीक है, पॉलिटिकल लेवरेज इन ऑर्डर टू डू व्हाट, इन ऑर्डर टू सिक्योर अ वोट बैंक, ठीक है, तो रीजनलिज्म की क्या है कि ये भी हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ कल्चरल आस्पेक्ट, इट इज़ अ आस्पेक्ट इन विच पॉलिटिकल पार्टीज आर टेकिंग अ लेवरेज टू सिक्योर अ वोट बैंक। वैसे एग्जाम्पल्स बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, लाइक अगर तमिलनाडु में बात करूँ तो देयर इज़ DMK, ठीक है, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट आंध्र प्रदेश देन देयर इज़ तेलुगु देशम पार्टी, देन इफ़ यू टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल and if you talk about Punjab there are various regional parties like in Punjab we have what Akali Dal, ठीक है, तो there is rise of regional political parties and itself giving a rise to a newer kind of regionalism to secure a thing called as vote bank politics, ठीक है। अब जोग्राफिकल एस्पेक्ट है, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स कैसे हैं कि देर आर अरावलीज, देर आर विंध्यास, देर इज
वेस्टर्न घाट्स, देयर इज़ ईस्टर्न घाट्स, एज रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है, ठीक है, देयर इज़ मोर यूनिकनेस ऑफ नेचर रीजन, यूनिक आस्पेक्ट्स ऑफ रीजन्स बिकॉज ऑफ रिलेटिव आइसोलेशन। अब आइसोलेशन क्यों हुआ है, ड्यू टू दीज माउंटेन्स एंड रिवर वैलीज, ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर आर वेरियस aspects of regionalism can be seen, therefore we see a different kind of culture here, 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 we see a different kind of culture in this region, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंडो चाइनीज़ कल्चर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पंजाबी कल्चर, यहाँ पर क्या हो जाएगा मराठी कल्चर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कन्नड़ कल्चर, तेलुगु कल्चर, ठीक है। तो ड्यू टू जोग्राफिकल आस्पेक्ट्स ऑल्सो देर इज़ अ आस्पेक्ट ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। तो रीजनलिज्म क्या हुआ है, ड्यू टू यूनिक टोपोग्राफी एंड द फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जोग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात करते हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अंदर बात करें तो रिसेंटली देयर इज़ अ वेरी फेमस एग्जांपल इन विच द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश जो गवर्नमेंट है, इट डिड व्हाट, इट मेड मैंडेटरी फॉर द एग्जिस्टिंग एंड न्यूअर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, इट मेड मैंडेटरी फॉर द एग्जिस्टिंग एंड न्यूअर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, टू एम्प्लॉय कंपल्सरी 75% ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम द स्टेट इटसेल्फ। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए क्या है कि 75% जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर देम इन द इंडस्ट्रीज़। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। एट द सेम टाइम देर आर वेरियस गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर लीडिंग टू वॉट, लूप साइडेड डेवलपमेंट, और वी कैन से अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट, ठीक है। एज अ रिजल्ट बहुत सारी क्या हैं, जो डिफरेंट बैकवर्ड पॉकेट्स ऑफ द कंट्री आर डिमांडिंग टू हैव अ सेपरेट स्टेटहुड फॉर देमसेल्व्स। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल की बात करूं तो अगर क्या होगा हमारे पास बुंदेलखंड रीजन हो गया, बुंदेलखंड रीजन, एंड इट इज़ कवरिंग पार्ट्स ऑफ एमपी एंड पार्ट्स ऑफ यूपी, सो दे आर डिमांडिंग टू हैव अ डिफरेंट स्टेट, ठीक है, बुंदेलखंड रीजन, बिकॉज इट इज़ अ बैकवर्ड पॉकेट, ठीक है, ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो ड्यू टू द फिजियोग्राफिकल aspects of the particular region। एक ये हो गया। देन देर आर डिमांड्स फ्रॉम छोटा नागपुर रीजन, जहाँ पर क्या है द एरिया इज़ रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड, ठीक है। देन देर इज़ बोडो लैंड इन असम, देर आर वेरियस अदर एग्जाम्पल्स यू कैन राइट दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज आर नॉट बैलेंस्ड इन रीजनल आस्पेक्ट और फॉर रीजनल बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ये हो गया पॉइंट हमारे पास, ठीक है। तो जोग्राफिकल हो गया, गवर्नमेंट हो गया। अब बाकी जो भी हमारे पास अदर रीजन्स हैं किसके, रीजनलिज्म के, उसको वी विल बी कंबाइनिंग इन द अदर्स हेडिंग। अब इसके अंदर हम बात करें तो हम क्या बात कर सकते हैं, देर इज़ द आस्पेक्ट ऑफ सेशनिज्म और सेपरेटिज्म, ठीक है। अब इसके रिफ्लेक्शंस कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके रिफ्लेक्शंस यूजुअली आर बीन सीन इन द हैंड्स ऑफ द मिलिटेंट्स and fundamentalist groups, which are advocating for these separatist tendencies। अब इसके एग्जांपल बहुत सारे हैं, लाइक उल्फा कहाँ पे हो जाएगा, असम के अंदर, लाइक इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लाइक द खालिस्तानी मूवमेंट, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए। दीज ऑल आर शोइंग वॉट, दीज ऑल आर शोइंग दिस कि ठीक है, रीजनलिज्म का एक आस्पेक्ट है कल्चर असर्टिवनेस, जो हम अदर एस्पेक्ट्स में देखते हैं, बट कल्चर असर्टिवनेस इज़ ओनली वन फैक्टर ऑफ रीजनलिज्म। बाकी और भी फैक्टर्स हैं विच आर ऑल्सो प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ रीजनलिज्म इन द कंट्री। तो हमने आर्ग्यूमेंट में फॉर भी दिया है, हमने आर्ग्यूमेंट में अगेंस्ट भी दिया है, हमने आर्ग्यूमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए वी हैव गिवन वेरियस एग्जाम्पल्स एज वेल, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं, लाइक आइसैक मुआ नागालैंड वाला हो जाएगा। देन देयर आर वेरियस अदर आस्पेक्ट्स यू कैन राइट। अब कंक्लूजन की बात आती है तो इन कंक्लूजन व्हाट वी कैन राइट अ सिंपल कंक्लूजन दैट देयर इज़ अ नीड टू इंक्रीज द फिलॉसफी ऑफ व्हाट वी से एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म,
ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन व्हाट, बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है, ये बता सकते हैं. देन देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग व्हाट, इंटरस्टेट काउंसिल्स. देन स्ट्रेंथनिंग नीति आयोग फ्रेमवर्क, ठीक है, टू डू व्हाट, टू अचीव बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. ठीक है, सो दीज ऑल कैन बी रिटन अगेन. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. हमने क्या किया है, वी हैव गिवन सम वेटेज टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज सेइंग दैट जो रीजनलिज्म है इन द कंटेम्प्रेरी टाइम इज ड्यू टू अ राइजिंग आस्पेक्ट ऑफ कल्चरल असर्टिवनेस. ठीक है, देन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी हैव शोन कि cultural assertiveness is only one factor of regionalism. There are also other factors which are playing a prominent role in steadfasting the aspect of regionalism. तो हमने उसको सेकेंड पार्ट में कर दिया and we gave an optimistic conclusion which is also 5% of the answer. So this is how we can write a good and comprehensive answer. Thank you and have a nice day.